evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. Today, I'm very excited. Today's subject is basically how to utilize NEAT. We're going to understand what NEAT is and how can we use it to get maximum benefit out of it. Along with that, we're going to discuss the many clocks that our body has, along with individual other clocks that keeps our body in sync. We're going to understand how our lifestyle directly impacts these bodily clocks. To start the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award, but most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very, very carefully. And over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you had an early dinner and done some exercise, because there's nothing worse than having a late night dinner and then going to sleep. So please, get this, make some changes in your plan, make some changes in your organization. And if you believe that you can have your dinner by 6:30, you will find a way to have it by 6:30. If you feel that you can't, then you are right, but that is going to impact your health. But once you are sure that this has a tremendous impact on your health, I'm sure you'll be able to find a solution around your busy schedule as to how you can, shift your dinner early and, with this one simple change, make your life healthier. Today we're going to be talking about NEAT, and you're very lucky because Raj is going to take you through this topic. And he was somebody who should normally say that I was shocked that when I tried to check that when I was in the corporate world and I was trying to check that how much of movement I was doing, and he realized that he wasn't even moving like 100 meters in the whole day. And it got him thinking. So not only he started exercising, but he also started developing this idea of NEAT where, during the daytime, during what you need to do, you find a way to, put in some exercises, which is not like, really doing exercise, but at least doing something, some movement to break the sedentary lifestyle. So listen to Raj very carefully, okay, because he will take you through these points of circadian rhythm and NEAT, in a very precise manner, the way it has really impacted his health. So over to you, Raj. Thank you, Farooq, and good evening, everybody. Very very important topic tonight, right? Because अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे, मेंटल हेल्थ आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस. Sleep is becoming another big issue. Like people are not getting sound and deep sleep. इवन स्पोर्ट्स पीपल जो क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हैं, उनको भी अब नींद नहीं आ रही है. फूड टाइमिंग एंड द फूड क्लॉक के बारे में, जो हम बॉडी क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हाउ दिस इज कॉजिंग मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल इश्यूज दिस डेज. आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड normally मतलब on the face value he is 52 years old and absolutely fit, but धीरे धीरे what I'm seeing in their family as a practice जो मैं देख रहा हूँ, and that is scary because अभी वो एकदम ठीक है एंड रिसेंटली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू हुआ था, बीपी फ्लक्चुएट होने लगा था इस पर्सन का. And I said, nothing to worry about. This is just the initial trigger. Why don't you make some significant life? Why don't you make some important lifestyle changes in your habit? मैंने उसको भी बोला, उसकी वाइफ को भी ये बात बोला. सो उनके मेडिकल रिपोर्ट्स आए, मेडिकल रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड लेवल वाज हाई, लीवर वाज स्लाइटली इम्पैक्टेड, बहुत थोड़े से रेंज डीरेंज थे. एंड व्हाट आई सजेस्टेड टू देम दैट, जो अभी फरूक बोल रहे थे, दैट व्हाई डोंट यू गो फॉर अ अर्ली डिनर. Immediately there was a big no-no from the family, the husband wife. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये प्रैक्टिकल थोड़ी ना है, ऐसे ही होता है. नॉर्मली द डिनर टाइम इज अराउंड 9, 9:30, 10 o'clock तक भी होता है रात को डिनर.
and gradually the person has started taking now BP medication, BP medicine. उसकी वाइफ को बहुत अच्छा लग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है याद दिलाना कि दवाई टाइम पे ले लेना, बट वो सिंपल लाइफस्टाइल चेंज जिसके वजह से ये इशू है वो नहीं, वो चेंज कर रहे। नाउ इमेजिन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट, इसका क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी आप बीपी की दवाई खा रहे हो, थोड़े दिन में उसके साइड इफेक्ट से आप डायबिटीज की दवाई खाने लगोगे, उसके साइड इफेक्ट के वजह से आप स्टमक रिलेटेड इश्यूज की दवाई खाने लगोगे। ट्रस्ट मी, सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ऑफ अर्ली डिनर कर लो तो ये इशू ही परमानेंटली इरेज हो जाएगा, वर्सेस गेटिंग इनटू दिस लूप। एंड जितना मैं आजकल अपने इर्द गिर्द अपने एज ब्रैकेट में अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये चीज देख रहा हूँ, उतना ही ये प्रोग्राम और ज्यादा रिलेवेंट होते जा रहा है, दैट व्हाई दिस नीड्स टू बी ब्रॉट इन अगेन एंड अगेन। द बेसिक लाइफस्टाइल जो इश्यूज है जो हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके वजह से इशू होएगा। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ऑन वन साइड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन बॉडी क्लॉक। नाउ बॉडी क्लॉक को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बॉडी के सारे फंक्शन में इसका रोल है। And on the second side, we are going to discuss NEAT, right? So, yeah. Now, what is body clock, you know? Okay. Now, what is body clock? जो एक हमारा क्लॉक होता है जो हमारे घरों में लगा होता है, ऐसे ही एक हमारे अंदर भी एक क्लॉक होता है जो हमारे एक मेन क्लॉक होता है, देन देर इज ऑर्गन्स क्लॉक, यू नो, एवरी ऑर्गन हैज टू परफॉर्म सर्टन रोल्स एंड उसके लिए देर इज अ टाइमिंग एंड ऑल दो स्टफ। सो अगर आप देखिए कि हमारे अंदर भी एक क्लॉक है ना, अगर ये क्लॉक मिस अलाइन हो जाएगा तो क्या होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अगर हमारे घर में क्लॉक होता है और अगर वो मिस अलाइन हो जाए तो सारा दिन का जो एक्टिविटीज है वो इधर उधर चली जाएगी। उसी प्रकार अगर हमारे बॉडी का जो क्लॉक है अगर वो मिस अलाइन हो जाए तो इमेजिन करें क्या सब होने वाला है, राइट। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फारूक अभी मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे यार, मेरे को याद है आई यूज्ड टू कम लेट नाइट होम ऑफिस से, कभी 2 बज जाते थे, रात के 1 बज जाते थे, और जब मैं 2 बजे आता था मेरा प्लेट टेबल पे रहता था और मैं 2 बजे आके खाना खाता था और सो जाता था। एंड नाउ व्हेन आई रीड ऑल दोस थिंग्स आई रिमेंबर कि कितना मैंने अपने बॉडी को अब्यूज किया है। नाउ थैंकफुली एटलीस्ट इस प्रोग्राम में आके ये समझ में आया कि वाई मेडिसिन फ्री एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। सो ये है क्या, राइट, हमारा जो बॉडी क्लॉक है इसमें इंपैक्ट कैसे पड़ता है, या क्या वो डेली एक्टिविटीज है जिसके वजह से हमारा बॉडी क्लॉक पे इंपैक्ट पड़ता है। नंबर वन, फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड इज स्लीप। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू दिस चैलेंज कि रात को नींद नहीं आती और दिन में सो जाते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं यू नो स्लीप हैज बिकम अ मेजर इशू दिस डेज। फूड हैबिट्स, राइट। नाउ दिस आर सम ऑफ द पैरामीटर्स जो हमारे बॉडी क्लॉक को इंपैक्ट करता है। स्ट्रेस, आप फर्स्ट करके देखिए, आई मीन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोफेशनल क्रिकेटर, एंड जब मैं फारूक से डिस्कस कर रहा था तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल दैट यू कैरी, बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी दैट यू कैरी, आप रात को नींद नहीं आती है। स्क्रीन टाइम, I mean, big issue, big issue, you know, and late night snacking. सो ये वो कुछ पैरामीटर्स है जो हमारे बॉडी क्लॉक को इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफस्टाइल के वो पैरामीटर जो हमारे बॉडी क्लॉक को इम्पैक्ट करता है। नाउ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर आप देखिए, सो देर इज अ मेन क्लॉक विच इज देर इन द ब्रेन एंड देर इज ऑर्गन क्लॉक। सो एवरी ऑर्गन हैज टू परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज एट अ सर्टन टाइम, राइट। नाउ इनको इम्पैक्ट क्या करता है, लाइट इनको इम्पैक्ट करता है, डाइट इनको इम्पैक्ट करता है, एक्सरसाइज इनको इम्पैक्ट करता है। सो जो भी हम ये एक्टिविटीज करते हैं उससे एक ट्रिगर जाता है मेन मेन क्लॉक को, विच इज द ब्रेन, एंड देन ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू ऑल दिस ऑर्गन्स एंड अकॉर्डिंगली द ऑर्गन स्टार्ट्स वर्किंग। नाउ इमेजिन करिए अगर ये मिस अलाइन हो जाए तो क्या होगा, ये जो ऑर्गन फंक्शंस इनको जो करना है ये फंक्शंस प्रॉपरली नहीं करेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, योर हेल्थ विल नॉट बी द सेम व्हाट इट नीड्स टू बी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा, वी विल स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन मेडिकेशन, ये सारे जो कॉन्सिक्वेंस होंगे उसको कंट्रोल में करने के लिए। नाउ समथिंग विच इज देयर इन आवर हैंड वी आर ट्राइंग टू डू विद अ मेडिकेशन, एंड उसका साइड इफेक्ट ये होगा दैट यू नो, आप कभी भी एनी पर्सन हु इज ऑन अ वेरी हाई मेडिकेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डाई ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। सो कहीं ना कहीं डायरेक्शन आप देखिए, आज ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा, बट डायरेक्शनली हम किस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो नेक्स्ट 10-15 years आर गोइंग टू बी डिसाइडेड ऑफ दैट। नाउ बेनिफिट्स ऑफ डे टाइम फिजिकल एक्टिविटी ऑन आवर बॉडी क्लॉक एंड हेल्थ, ये क्या होता है, कैसे होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं इट स्ट्रेंथन्स आवर मेन
clock's daily pattern. So hence exercise is very, very important. Outdoor activity increases exposure to natural bright light. So जो natural bright light है उसके एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलता है. टाइमली एक्सरसाइज इंप्रूव्स बैलेंस ऑफ डेली रिदम, हेल्प्स बेटर बैलेंस ऑफ द टेम्परेचर. जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड रेगुलर एक्टिविटी में हेल्प टू मेंटेन फूड रिजिम, राइट? Altogether, these factors enable robust circadian alignment, high rhythm, amplitude, and well-being. So ये जो अलाइनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सारी जो हम एक्टिविटीज करते हैं इससे जो हमारा बॉडी क्लॉक अलाइंड होता है उसके वजह से जो फंक्शंस होंगे दैट यू विल सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, बी इट मेंटल हेल्थ इश्यू, बी इट डिप्रेशन, बी इट कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज, बी इट डायबिटीज, be it thyroid related issues, be it sleep problem, anything and everything is connected to all this body clock. Hence, it is very, very important. राइट, स्लीप और बॉडी क्लॉक का क्या कोरिलेशन है? बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा सर्काडियन रिदम है. अगर आप देखेंगे तो डे लाइट का अपना रोल है प्ले करने का, और सनलाइट सनसेट के बाद का अपना रोल है प्ले करने का. नाउ हेल्थ इंपैक्ट विद स्लीप डिस्टर्बेंस, इसके वजह से हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट करता है? लाइक फॉर एग्जांपल डिलेड, क्या क्या हो सकते हैं हमारे स्लीप पैटर्न के डिस्टर्बेंस? डिलेड स्लीप एंड वेक फेज, राइट? आप देखिए, I mean, nowadays this has become very, very common. And a couple of months ago, my son asked me this question कि क्या प्रॉब्लम है अगर मैं कभी भी सोऊं और कभी भी उठूं? If I have to sleep like 8 to 9 hours a day, how does it matter कि if I sleep at 3 a.m. in the morning and I get up like something around 11 a.m. in the morning? And वही चीज, नाउ द क्वेश्चन वॉज वेरी लॉजिकल अगर ये सारा चीज उसका इम्पैक्ट ना समझ में आए. बिकॉज फाइनली 24 आवर ही तो है एक दिन में, और उस 24 आवर्स को हम कैसे भी डिवाइड करें वो तो हमारी मर्जी है. सो इतना हम इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? लाइक मेरा पूरा बचपन निकला था कि वेयर आई वाज नेवर अलाउड टू, लाइक अभी भी, आई मीन आई डोंट रिमेंबर दैट एवर इन माई लाइफ आई हैव like slept beyond like maximum it's like 7:15 maximum. Otherwise, normally it is around 6 a.m. or slightly before that. Never ever. 8 के बाद तो मेरे को याद ही नहीं है कि मैं कभी सोया हूं. बट सोच के देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों है. डिलेड स्लीप वेक फेज, इरेगुलर स्लीप वेक रिदम, आप कभी भी उठ रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, एक पैटर्न नहीं है. जेट लैग, शिफ्ट वर्क, नॉर्मली जो लोग शिफ्ट जॉब करते हैं इसका इंपैक्ट हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है? फटीगनेस, मूड प्रॉब्लम्स, डिक्रीज मेंटल कैपेबिलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लो परफॉर्मेंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज एंड लो अलर्टनेस लेवल. ये सारे इंपैक्ट है जो इसका हमारे बॉडी पे इंपैक्ट पड़ता है. नो, एक दिन में ये दिखाई नहीं देता, एक हफ्ते में भी समझ नहीं आता है, एक महीने में भी समझ नहीं आता, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से अराउंड 3 to 5 years, you will see significant impact on your health because of all these issues, right? Now, sometimes late night food cravings simply mean you need to go to the sleep earlier. रिसेंटली माई ब्रदर इन लॉ वाज टेलिंग मी दिस कि बिकॉज ऑफ दिस अर्ली डिनर उनको रात होते होते भूख लग जाती है. मैंने बोला तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पानी पी लो, और अगर फिर भी भूख लग रही है तो स्टे विद इट, रात ही तो काटनी है, सुबह उठ के खा लेना, राइट? बट sometimes we need to give priority to our health, not to the taste or the cravings and all the stuff. Because अगर आप ये objective clear करेंगे, see I'm nearing 50 now, and now I see when I interact with most of the people, people have just given up. I mean, recently I was speaking to a person who was sitting next to me in a flight, and he said very relevant point. बोलता है हमने कभी सोचा ही नहीं कि 50 के बाद हेल्थ को इंपॉर्टेंस भी देना है. बिकॉज ये तो अंडरस्टूड है कि बीमार पड़ेंगे और दवाई खाने रहनी पड़ेगी, मतलब ये तो ऑब्वियस है. सो व्हाई टू मेक इट सो लाइक, इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है? एंड देन ही ओनली सेड कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आज हम वो राइट हैबिट्स नहीं बिल्ड करेंगे तो आने वाले टाइम में तकलीफ हो जाएगा. बट द बिगेस्ट चैलेंज इज वी डोंट हैव अ comprehensive program, something that is like more holistic, complete. And the good news about this community is it ensures that all those parameters which can help you to live a healthier life, for example till 100 years of life, all those topics are covered over here. So ये program की सबसे अच्छी यूनिक बात क्या है? It covers all the aspects which is required to have a great health for say around next 90 to 100 years of our age, जब तक हम जिंदा है, right? सो समटाइम्स लेट नाइट फूड ये क्रेविंग्स है. एंड ये देखिए ना, अगर आपका एक रेगुलर पैटर्न है वर्सेस एक इरेगुलर मील टाइमिंग है, दोनों का इम्पैक्ट क्या है? यू नो
आर पैनक्रियास हैज टू परफॉर्म, आर लीवर हैज टू परफॉर्म। नाउ ये वो ऑर्गन्स है, जब आप खाना खाते हैं दे हैव टू प्रोसेस द फूड एंड ऑल द स्टफ। बट अगर आप उसको एक रेगुलर पैटर्न देंगे वर्सेस एक इरेगुलर पैटर्न देंगे, इमेजिन व्हाट इम्पैक्ट आर यू क्रिएटिंग। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव लर्नड इन दिस प्रोग्राम। I was into sales and I used to meet a lot of people. So I don't know how many cups of tea, how many cups of coffee, how many times snacking. ये सब बहुत common हुआ करता था मेरे लिए. But when I realized the importance of this, now it is very clear. I just say, just give me a glass of water. So sometimes people respect you for what you're doing, and they sometimes they ask you the right set of question कि क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों, and you know some things that you all learn, it's a great feeling when you share those experiences with your near and dear ones. So when your food intake pattern aligns with your body clock rhythms, it balances the metabolic process. Versus when your food intake pattern is misaligned with the body clock rhythms, causing circadian disruption, so basically deregulation of metabolic processes. कई बार मैं हार्ड वर्क करके आता था तो मुझे ऐसा लगता था, इफ आई हैव गॉट अ हेक्टिक डे, मुझे ऐसा लगता था कि रात को आई शुड ईट, राइट, आई शुड ईट समथिंग, या क्रेविंग्स एंड ऑल द स्टफ बिकॉज आई हैव डन सो। मैं वो अपने आप को वो लीवरेज देता था कि आज मैं बहुत हार्ड वर्क करके आया हूं तो मुझे चल जाएगा, मेरे को खा लेना चाहिए कुछ भी, बॉडी आज बहुत एक्सरसाइज मतलब बहुत फटीगनेस से गुजरी है। बट इट्स ओनली नाउ व्हेन आई हैव रियलाइज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक द फूड टाइमिंग एंड द पैटर्न एंड द मेटाबॉलिक हेल्थ एंड ऑल द स्टफ, राइट? So tips to avoid some late night snacking. Number one, I don't think it's written over here. It's a decision. बिकॉज इफ यू गिव इंपॉर्टेंस टू योर हेल्थ, ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। वो जो एक दो बार के क्रेविंग्स है, जो ट्रिगर है, जो अर्ज है, एक बार अगर आपने अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया, सो इट इज नॉट, यू नो, इट इज नॉट लाइक कि एम आई अ डिसिप्लिन पर्सन और एम आई नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन, एम आई में मेरे से होगा या नहीं होगा, ये सब नई बातें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने की जरूरत है। सिंपल है, जब भी वो क्रेविंग की अर्ज निकले, जस्ट गिव योर सेल्फ 5 सेकेंड ब्रेक। 5 सेकेंड अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस करिए कि मैक्सिमम क्या होगा अगर आप नहीं खाओगे तो। वो जो नेगोशिएशन है, यू नीड टू विन दैट नेगोशिएशन इनसाइड योर ब्रेन, दैट्स इट। और कभी अगर हो गया, इट्स ओके, बिकॉज दैट इज द पावर व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज यू लर्न, यू नो द ग्राफ इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा जी, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। लेकिन जब तक आपका फोकस राइट डायरेक्शन में है, जब नीचे जाएगा तो द बाउंसिंग बैक बिकम्स इजियर व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। सो डोंट 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 बी सो रूड टू योरसेल्फ। अगर कभी आपने उसको छोड़ दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी डोंट डू इट। बट अगर हो गया, then your bouncing back needs to be the importance rather than that guilt of why you did that, you know. So give priority to the right things. So some tips: plan balanced meals with high protein and fiber. So अगर आपकी मील में प्रोटीन और फाइबर है, ये क्रेविंग्स होगी ही नहीं, अर्ज नहीं होगा वो चीज को। इस्टेब्लिश अ रूटीन। नाउ जब आपका एक रूटीन सेटअप हो जाएगा, आप देखेंगे ये क्रेविंग्स कम होगी या नहीं होगी। Identify the triggers, you know, either it can be a place, a person, a dish, or anything like that. और जब आप उस ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ट्रिगर था कि पोस्ट लंच अगर मैंने एक स्वीट खाया है, सो मुझे 2-3 स्वीट खाने की क्रेविंग होती थी, एंड आई कुडंट स्टॉप एट लाइक वन पे, तो डेफिनेटली आई कुडंट स्टॉप। नाउ सिंस लास्ट 1 ईयर आई डोंट इवन ईट दैट वन। सो पहला ही मत खाओ तो दूसरे की क्रेविंग ही नहीं, अर्ज ही नहीं होगा, तो तीसरा की अर्ज नहीं होगा, स्टॉप दैट वन ओनली। सो दैट्स यू नो, वंस यू आइडेंटिफाई द ट्रिगर, इट इज इट इज वेरी इजी टू define how you are going to deal with it. Create a relaxing bedtime routine, very very important. Mindful eating, limit your screen time. ये स्क्रीन टाइम के मुझे से अब समझ में आया कि पुराने लोग टेबल लैंप लेके क्यों पढ़ा करते थे। और मैं पूरा बचपन से ये सोचता था कि टेबल लैंप का इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक नॉर्मल लाइट के भी तो नीचे हम पढ़ सकते हैं। एंड ये जो स्क्रीन टाइम है, कहीं ना कहीं ये उसी को रिलेट करता है, बिकॉज आप आने वाले स्लाइड्स में देखोगे हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर स्लीप एंड आवर अदर बॉडी क्लॉक एंड ऑल द स्टफ। गेट एडिक्वेट स्लीप एंड कीप हेल्दी स्नैक्स ऑन हैंड, राइट? सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू टू अवॉइड दिस स्नैकिंग। एंड इफ यू कैन अवॉइड स्नैकिंग, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर हेल्थ, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, और probably a liver health, or probably a reversal of diabetes and all those stuff. Health consequences of caffeine consumption, you know, white coffee, black coffee, coffee without milk, green tea, white tea, Assam tea, Darjeeling tea,
No, nothing is good. So it delays your onset of sleep. एंग्जाइटी हेडेक होती है इसके वजह से, डिस्टर्ब बॉडी क्लॉक रहता है, हार्ट बर्न होता है. सो समवेयर यू नीड टू अवॉइड दिस. एनी सॉर्ट ऑफ कैफीन इज नॉट गुड, राइट? वो टेम्परेरी वो स्पाइक इन एनर्जी डेफिनेटली देता है, बट देर आर अदर वेज. नाउ गेट इन टच विद योर हेल्थ बडी और द पर्सन हु इज कनेक्टेड यू ओवर हियर. दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट आप इसकी जो अर्ज है आप उसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट? Impact of caffeine on sleep duration. So 2 cups of coffee, roughly it gives you 400 mg of caffeine. Now, caffeine 400 mg before sleep lowers the sleep duration even when taken 6 hours before the bedtime. So normally अगर आप evening में भी अगर आप coffee करो, it is going to disturb your sleep pattern. So caffeine right before the sleep 0 hour decrease sleep duration by an hour. Even when caffeine was taken 3 to 6 hours before the bed, sleep duration was decreased by an hour. So normally हमने ये देखा कि इवनिंग में हम कॉफ़ी पीते हैं या चाय लेते हैं, और आप देखिए कि normally we go to bed 6-7 hours after that, but it is going to impact on your sleep quality, more disturbance. I don't know. I think these advertisements and all now, like every student who is in 12th standard, they believe that वो कॉफी पीनी जरूरी है अगर आप कॉलेज एडमिशन के लिए जा रहे हो, या अगर आप ऑफिस में हो, कई बार वो मंकी सी मंकी डू हो जाता है. बट यू नीड टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम and this community is it helps you to bring those small elements, Joe, which can have a serious and big impact on your health. Tips to reduce caffeine intake: switch to decaf, limit consumption, timing adjustments, drink enough water, try herbal tea, check labels, healthy snacks and beverages. राइट? सो फारूक ऑलवेज से इसकी पीना ही क्यों है. सो जब आप एक बार वो डिसाइड कर लो पीना ही नहीं है, सो इट इज ओके. एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सो मेलेटोनिन क्या होता है, ये वो हार्मोन है जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है. नाउ जब जब इवनिंग हो जाती है, व्हेन द सन सेट्स, द द ब्रेन गिव्स सिग्नल्स टू द ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस दिस, एंड कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर करता है आपको सोने के लिए. नाउ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या करता है, वो ब्रेन को मैसेज ही नहीं मिलता कि सनसेट हो गया है. और बिकॉज वो नहीं होता है, सो ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड समवेयर आप देखेंगे बिकॉज ऑफ विच आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन इट सिक्रेट्स, वी गो टू स्लीप, एंड व्हेन इट इज बीन सप्रेस्ड, आप एलेटनेस, मेमोरी, अटेंशन स्पैन, रिएक्शन टाइम्स, लर्निंग एबिलिटी, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ये सब आप देखेंगे कि आपका ऑन रहता है. सो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, normally nowadays, because of this social media and all, and there is this lot of इंफॉर्मेशन एंड ऑन सोशल मीडिया, हम अपने सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने इंटरव्यूज में इसको उसको बोलते हैं कि हम तब तक स्क्रीन देखते रहते हैं और वो रील्स देखते देखते हम सो जाते हैं. नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग, योर बॉडी इज टायर्ड, योर बॉडी वांट्स टू स्लीप, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज द ब्रेन इज इन अलर्ट मोड, एंड ब्रेन इज नॉट एबल टू स्लीप. So hence it becomes very very important to understand this point. You have to define that आपका last screen आप कब तक देख रहे हो. If something is important and urgent, that person is going to give you a call. But you have to define this timeline. I remember very clearly when BlackBerry was getting launched in India, I was working for Airtel that time. And I told my boss, what a technology revolution. And my boss said, it is not something good because लोग अब ऑफिस से घर जाने के भी बाद में इसमें एंगेज रहेंगे, एंड यू आर कैरिंग दोस थॉट्स एंड ऑल. नाउ समवेयर, नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा. यू नो अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे तो शायद वो इंपॉर्टेंट वाला चीज सिर्फ 5% रह जाएगा, बट बिकॉज आज वो हैबिट बन गया, द अदर 95% विच इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो गेट्स कैरिड अवे विद दैट 5%. सो एटलीस्ट वेन यू आर अवेयर अबाउट इट, when you are aware that what to see and what not to see, at least you will be able to bring it down to almost 90-95%. फिर वो सिर्फ जो 5% इंपॉर्टेंट है, फिर सिर्फ वो इंपॉर्टेंट रह जाएगा. राइट? सो हम कहीं भी ये नहीं बोल रहे कि आप सूफी बन जाइए या एकदम ही डिस्कन, अगर हो जाओ तो बेस्ट है, बट अगर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट डिसाइड कर लीजिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट वर्सेस व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट.
Impact of blue light on our circadian rhythm and health. Now exactly the blue light comes from the screen, and आप देखिए कि बहुत सारे घरों में बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, एंड आफ्टर हैविंग योर डिनर एंड ऑल लोगों को लगता है कि अब हमें टीवी देखना चाहिए, बट उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लाइट. पीपल हुज melatonin levels are suppressed are those and whose body clocks are thrown off by excessive light exposure are more prone to depression. So why is this depression going up? Somewhere ये भी तो उसको cause कर रहा है. Over the long term, not getting enough good sleep can lead to neurotoxin buildup that make it even harder you to get good sleep. By disrupting your melatonin release patterns, your smartphone's light also messes with the hormones that control hunger. A poor night's sleep caused by the nighttime smartphone use can make it harder to absorb and remember new information. देखिए टेक्नोलॉजी इज गुड बट वी नीड टू लर्न टू ड्रॉ दिस लाइन कि हम उस टेक्नोलॉजी को अपने लाइफ में कितना, टेक्नोलॉजी इज फॉर अस, वी आर नॉट फॉर टेक्नोलॉजी. अंडरस्टैंड दिस लाइन. 24/7 जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल है दैट डजेंट मीन कि उसको बार बार देखते रहना पड़ चाहिए हमारे को. Tips to reduce exposure to blue light: limit your screen time, enable night mode, switch to warm lighting, take regular breaks, read a book. एंड इमेजिन करिए अगर एज अ पेरेंट अगर आप ये सारे हैबिट्स अभी बच्चों को नहीं सिखाओगे तो इमेजिन ऑफ देयर, सी इमेजिन व्हेन वी वर किड आर ऑल दिस थिंग्स वाज नॉट देयर. नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस दैट वी आर पेइंग टुडे. बट इमेजिन ये जो बच्चे अभी है अगर ये लोग को ये सारी चीजें अभी से नहीं अवेयर कराएंगे, इमेजिन इसका कॉन्सिक्वेंस कितना स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में. इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी स्केरी, राइट. नाउ क्रॉनिक स्ट्रेस एंड बॉडी क्लॉक. नाउ स्ट्रेस का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ये एक स्टीरॉइड प्रोड्यूस करता है बॉडी में, एंड जब ये हाई रहता है सो आप देखेंगे कि आपको हंगर, भूख, ओवर ईटिंग, स्लीप, ये सब सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये आपके ऑर्गन क्लॉक को इम्पैक्ट करता है, अदर सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, एंड इसके वजह से आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं. सो वी we can't avoid stress, but we can always learn to deal, we can always learn so that how to deal with the stress is very very important. कई बार हम बोलते हैं कि हम स्ट्रेस है, देखो आप स्ट्रेस को नहीं अवॉइड कर सकते हैं, इट इज लाइफ एंड लाइफ इज नेवर फेयर, बट वन नीड्स टू बी कॉशियस about how to deal with it, and that is more important. Right, tips to reduce some stress: exercise regularly, practice deep breathing, uh, get enough sleep, eat healthy, take breaks, engage in hobbies, practice mindfulness and meditation. Right? How to regulate your circadian rhythm: exercise regularly, stick to your regular bedtime and wake time, avoid caffeine in the afternoon and evening, avoid screen time at least 2 hours before bedtime, manage stress, avoid late night snacking. ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसके वजह से आप अपनी सर्कैडियन रिदम को और अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं. Are you doing neat? Right now, this brings us to the second most important topic, which is neat. कभी आपने देखा एक छोटा बच्चा जिम नहीं जाता है, वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज करने को नहीं जाता है, बट उसकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है. वेरी हार्डली यूल सी दिस किड हु इज रनिंग हियर, जंपिंग हियर एंड देयर, इज ओबीज, राइट. ओनली दोज किड्स जो फोन लेके बैठे रहते हैं दिन भर और एक कोने में पड़े रहते हैं वो ओबीज होते हैं. अदरवाइज जो बच्चे ये उछल कूद इधर उधर करते हैं, दे आर नॉट ओबीज. सेकेंड, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, आपने कभी ध्यान दिया है दैट सम लेडीज हु आर होम मेकर नॉर्मली अगर वो इधर उधर घर के काम में एंगेज है तो आप देखेंगे कि दे आर लाइक मोर फिट कंपेयर टू द पीपल हु गो टू जिम एंड ऑल द स्टफ. सो नीट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, विच मीन्स जो हम दिन भर ये फिजिकल मूवमेंट इधर उधर करते रहते हैं वो नीट कहलाता है. और नीट हमारे हेल्थ में, जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, जो हम जिम जाते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 5%, बट जो नीट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 15% टू आवर हेल्थ. So imagine how much more important NEAT is to our health, even compared to going to a proper gym and all. Right? So gym जाना 5% contribute करता है, but NEAT 15% हमारे health को contribute करता है. ये मेरे बनाए हुए स्टैट्स नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स है. और जो हम खाना खाते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 65% टू आवर हेल्थ. तो
अगर आप एक अच्छे हेल्थ गोल की तरफ जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इज नीट, राइट? नाउ दिस, देखिए, आई मीन, आज से सम कपल ऑफ 100 years अगो, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी हुआ करता था ड्यूरिंग द स्टोन एज, इंडस्ट्रियल एज, या उसके पहले, दिस वाज अराउंड 10 to 12 years, 10 to 12 hours per day, सॉरी। और around 100 years ago भी it was like around 8 to 10 hours per day that used to be a physical activity. But now our daily activity has come down to as low as like 25 minutes activity per day, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एज आप इसको बोल सकते हैं। हम बैठे रहते हैं और उसके वजह से अगर आप देखें हमारा जो फिजिकल मूवमेंट है वो एकदम कम हो गया है नाउ, बिकॉज ऑफ विच वी आर पेइंग अ हेवी कॉस्ट टू आवर हेल्थ, एंड हेंस नीड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, बट ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज गॉट मच सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड इन आवर वेल बीइंग। इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर्स में अगर आप देखेंगे वो 10,000 स्टेप्स का जो पैटर्न शुरू हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव यही था। बट वो 10,000, पीपल स्टार्टेड 2-3 महीने में उसके रिजल्ट्स को देख रहे थे। वो 2-3 महीने में वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो पैटर्न है जो आप लाइफ टाइम फॉलो करते हैं। फारूक अभी बता रहे थे कि जब मैं एक्चुअली कैलकुलेट किया था हाउ मच मूवमेंट आई डू इन अ डे, दैट वाज लाइक हार्डली 300-400 meters अ डे, या 100 meters अ डे, एंड देन आई वाज डिलिबरेट अबाउट दिस होल थिंग, राइट? सो दिस इज नीट, एंड नीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Are you doing NEET? Now, globally, an estimated 60 crore adults and 10 crore children were obese in 2015. India is not far behind. 1 out of 4 people are obese now. So अगर आप देखेंगे, so कैसे जो ईयर ऑन ईयर एज ब्रैकेट में, अक्रॉस एवरी एज ब्रैकेट अगर आप देखेंगे, हमारी ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, एंड समवेयर जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो नीट है, जिसके वजह जो जो डिक्लाइन हो रहा है, जिसके वजह से ओबेसिटी इज गोइंग अप। सो नीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो if been given a choice of going to a gym versus going for a walk, चूज वॉक। बिकॉज अगर आप ऑफिस में भी बैठे हो, अगर आप एक फोन कॉल पे हो, आप खड़े होके वो कॉल ले सकते हो, आप ऑफिस में वॉक करते करते ले सकते हैं। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप बैठ के और थोड़ी देर में आप खड़े होके भी आप कर सकते हैं, आप खड़े होके भी वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो ओबेसिटी और नीट का बहुत गहरा कोरिलेशन है। Non-exercise activity thermogenesis, as I already said, a new strategy has emerged, NEAT, right? It focuses on increasing low-level daily physical activity. This includes every activity that we do which expends energy, example, walking to the office, grocery store, etc. आज ये जितने ये क्विक कॉमर्स आ गया है, नाउ इवन यू नीड एनीथिंग एंड स्टफ रीचेस योर हाउस लाइक हार्डली 8 मिनट में। When I was a kid, I remember my mom walking to almost a couple of kilometers. She would walk to the sabji market to bring those sabji, and then in the afternoon she would walk to that दूध वाला to bring the milk. But today with this online and all, हम 8 मिनट में हमारे डोर स्टेप पे आ जाता है। But you need to be deliberate about this because this is important, right? You're doing daily chores, taking the stairs instead of a lift, gardening, standing instead of sitting. So ये वो सारी चीजें हैं जो जो हमारे नीड को इम्पैक्ट करती है। So as I was telling you, that 5% is eat, NEAT is 15%, and thermic effect of food is almost 10%। 70% जो हमारा BMR है वो कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर आप कैलोरी एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो इस तरीके से कैलोरी एक्सपेंडिचर होती है। सो व्हाट वी ईट गिव्स अस कैलोरी, एंड हाउ वी बर्न द कैलोरी इज लाइक वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी BMR को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। What to eat, when to eat contributes to your TEF, which is thermic effect of food। इसके बारे में हम अलग से सेशन लेंगे। और नीट अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 15% कंट्रीब्यूट करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर फिजिकल एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस। आप जो इधर उधर जो मूवमेंट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये कुछ चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि कितनी हम एनर्जी बर्न करते हैं, कितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं जो जो हमारे डे की एक्टिविटी होती है। सो अगर आप एग्रीकल्चर में देखो, शॉप असिस्टेंट हो, राइट, अगर आप ये सारे देखेंगे तो जो मोर फिजिकल एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है। हेंस इट इज़ मच बेटर। चिल्ड्रंस, इफ यू सी टुडे, दे प्ले फॉर कपल ऑफ आवर्स, बट unfortunately instead of playing in a park or an open ground, they are playing in front of a screen. So somewhere this correction in the habit needs to be brought in, and hence this community plays a very very important role, because आप community में देखेंगे that the community focuses on building the right healthy habits,
और एक फैमिली में जब राइट हैबिट बिल्ड हो जाता है, वो पैटर्न लाइफ टाइम कंटिन्यू होता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या वेट वापस गेन हो जाएगा. बिकॉज जो हैबिट्स है, जो छोटे छोटे, जब उसको करेक्शन हो जाएगा, ये चीजें जो रिजल्ट्स आएगी वो परमानेंट आएगी. Right? Some tips to increase your daily need. Yeah, increase your daily steps, gradually increasing it to up to 10,000 steps a day. Self charting. Get a standing desk. Find substitutes for sedentary activities. Walk briskly. So basically ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो आप देखेंगे कि जो आप डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं. और जब आप ये एक्टिविटीज को करोगे, somewhere your NEAT is going up, and if your NEAT is going up, it will have a positive impact on your health. So NEAT is the most important thing, it is very, very important. Sitting for long is like a new smoking. So don't sit for long. And the final slide, right? Shine every day, right? You start every day with gratitude and optimism. Have your nutrition on time. Intentions, visualize and set clear intention. One of the intentions that we have absolutely picked up from this program is we want to live a medicine-free life. I don't want to be dependent on medicine and all those stuff. And second is we are looking for a great health and a lifespan. I want to live till 100 years of my life, and I want to live a healthy life. I don't want to be medicine dependent. So ये जो प्रोग्राम है, ये मदद करता है आपको राइट हेल्थ गोल आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. You learn something new and exercise daily, the most important thing. And before I end, I would like to tell you about a big thing that is going to happen. Next Monday, we are going to have an open house podcast with Farooq Tarapur. And जहाँ पे हम सारे वो पॉइंट्स उनसे पूछने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए. सो अभी से अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए, बिकॉज ये ओपन हाउस की तरह होगा. इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइव पॉडकास्ट जो हम उनके साथ करेंगे. वो सारे सवाल पूछेंगे जो हम अपने अगल बगल देखते हैं. So next Monday is going to be very, very important. Next session also we are going to have Friday, but next Monday is going to be absolutely important. So mark your diary, mark your calendar, invite your family and friends. But अभी से उसकी तैयारी करिए, because अगले Sunday हम वो सारे सवाल पूछेंगे that how we can have a medicine free life. So thank you very much. Over to Ruchita. Thank you so much, Raj. That was amazing presentation, and I'm very sure everybody's understood how they can bring up their need to just meet the requirements and the importance of the circadian rhythm and the various other clocks that we have. As Raj already mentioned, do make sure to book the next meeting in your calendar. Invite your friends and families. This one you do not want to miss out on. With that, we come to an end of the session. Until then, good night, stay safe.